بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں پاکستان کی بقا سے جڑے ایک ایسے سنگین مسئلے پر بات کریں گے کہ اگر اس مسئلے کو فوری طور پر حل نہ کیا گیا تو پاکستان کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھے، لیکن محض خواہش کرنے اور دعائیں کرنے سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ جی ناظرین، آج شام شارع فیصل پر کراچی پولیس ہیڈ آفس پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ پولیس آفس کی چھت پر دہشت گردوں نے خود کو اڑا دیا۔ مجموعی طور پر اطلاعات ہیں کہ تمام دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کراچی پولیس آفس میں کمانڈوز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ پولیس آفس میں ایک اور زور دھماکے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی، جس سے عمارت کے کچھ حصے کو نقصان بھی پہنچا اور شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ دہشت گرد حملے میں پولیس اہلکار سمیت 2 افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں ایک پولیس اہلکار اور ایک سویپر شامل تھا۔ دہشت گرد جس کار میں آئے وہ صدر پولیس لائن کے احاطے میں کھڑی ہے۔ صدر پولیس لائن کے احاطے میں کھڑی کار کے چاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پولیس افسر نے بتایا کہ دہشت گرد پولیس وردی میں KPO میں داخل ہوئے۔ جی ناظرین، پولیس ہیڈ آفس میں 8 سے 10 حملہ آوروں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ شارع فیصل کے دونوں ٹریفک ٹریک کو بند کر دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سندھ پولیس کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ کراچی پولیس چیف نے KPO پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں اس طرح کا حملہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کمانڈوز عمارت میں داخل ہو چکے ہیں۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ رینجرز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ رینجرز نے پولیس کے ہمراہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا۔ جی ناظرین، دوسری طرف جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک میں دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں آئے روز دہشت گردی اور بھتہ خوری کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ خطرناک اور قابل تشویش بات یہ ہے کہ دہشت گرد تھانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور اہلکاروں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صورتحال میں دہشت گردوں کے پاکستان کے بارے میں خطرناک عزائم کا اندازہ کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں کہ دہشت گرد پاکستان کو کس نہج پر لے جانا چاہتے ہیں۔ آج علل صبح بھی پشاور میں دہشت گردی کا اسی قسم کا ایک واقعہ رونما ہوا۔ خبروں کے مطابق پشاور کے GT روڈ پر BRT ٹرمینل کے قریب تھانہ چمکنیم پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آتے میں کھڑی موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا۔ پولیس کے جاری کردہ بیان کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے علل صبح 3 سے 4 بجے کے قریب تھانے پر دستی بم پھینکا، تاہم حملے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ بعد ازاں پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ پولیس ظفر احمد نے کہا کہ پولیس جوان پہلے سے ہی الرٹ اور تیار تھے، جنہوں نے فوری طور پر بھرپور جوابی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے حملہ آور بھاگ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو اپنے مذموم مقاصد میں ناکام بنا کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پشاور پولیس پہلے سے زیادہ الرٹ ہے۔ اس کے علاوہ SP ظفر احمد کی قیادت میں رات گئے پولیس کی اضافی نفری نے اطراف اور مضافاتی علاقوں میں سرچ آپریشن بھی کیا۔ اب یہاں ایک بہت اہم اور منطقی سوال یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس محض دہشت گردوں کو بھگا کر فخریہ انداز سے میڈیا والوں کو یہ بتا رہی ہے کہ پولیس والے اتنے الرٹ تھے کہ انہوں نے جوابی کارروائی کر کے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، یا پھر پولیس کو دہشت گردوں کو بھگانے پر نہیں بلکہ اپنی توجہ، صلاحیتوں اور حوصلے دہشت گردوں کو جڑ سے ختم کرنے پر مرکوز کرنے پڑیں گے؟ جی ناظرین، یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران دہشت گردوں کی جانب سے خیبر پختونخوا پولیس کو نشانہ بنانے کے لیے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
30 जनवरी को पीर के रोज़ पेशावर की पुलिस लाइन्स की हदूद के अंदर एक मस्जिद में बम धमाका हुआ। इस बम धमाके के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बने और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। जहाँ बहक होने वालों और ज़ख्मी होने वालों में ज़्यादातर पुलिस फोर्स के अफरान और एहलकार थे। इस धमाके की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान या TTP पाकिस्तान ने कबूल की थी। ये बहुत तशवीशनाक बात है कि दहशतगर्द पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ललकार कर दहशतगर्दी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आज़ाद फिर रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ याद दहानी ज़रूरी है कि जुलाई 2018 के बाद जनवरी 2023 मुल्क के लिए सबसे हलाकत खेज़ महीना साबित हुआ है, जिसके दौरान मुल्क भर में होने वाले 44 दहशतगर्द हमलों के नतीजे में 134 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 254 अफराद ज़ख्मी हुए। कराची समेत मुल्क भर में स्ट्रीट क्राइम के दौरान जाँ बाग होने वाले इसके अलावा हैं। याद रहे कि 2018 में इलेक्शन से कबल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, JUI समेत दीगर सियासी जमातों के लिए मुल्क भर में ख़ास तौर पर KPK में अपनी इलेक्शन मुहिम चलाना नामुमकिन हो गई थी। उस दौरान ANP, PP के कई रहनुमा और कारकुन बम धमाकों और दहशतगर्द हमलों में शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी। इन दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की तरफ से इमरान खान की PTI को इलेक्शन मुहिम के दौरान खुलकर खेलने का मौका फराहम किया था। 2023 के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में न सिर्फ दहशतगर्द हमलों की तादाद 17 से बढ़कर 27 हो गई, बल्कि उसके नतीजे में हुई अमवात की तादाद भी 116 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता चंद माह में KP के थाने पर 1 दर्जन से ज़ायद हमले हो चुके हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। KPK में दहशतगर्द मुसलसल कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज देकर उन पर हमले कर रहे हैं। ये वही TTP के दहशतगर्द हैं कि जिन्हें इमरान खान की मुकम्मल पुष्ट पनाही और भरपूर सियासी सपोर्ट हासिल रही है। ये वही TTP के दहशतगर्द हैं कि जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा के दौरे हुकूमत में इमरान खान के हुक्म पर दोबारा से KPK में बसाया गया और हर किस्म की सहूलतें भी फराहम की गईं। याद रहे कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद सख्त तरीन और मुश्किल ऑपरेशन करके सिक्योरिटी फोर्सेज ने KPK से दहशतगर्दों से KPK को पाक कर दिया था, लेकिन PTI ने इन्हें दोबारा ताकतवर बनाया। ये वही TTP के दहशतगर्द हैं कि जिनके साथ इमरान खान ने न सिर्फ मज़ाकरात का एतराफ़ किया, बल्कि ये भी एतराफ़ किया कि उनके दौरे हुकूमत में 40,000 से ज़ायद TTP के कारकुनों और हमदर्दों को KPK में दोबारा बसाया गया है। ये वही TTP के दहशतगर्द हैं कि जिनके खिलाफ इमरान खान किसी भी ऑपरेशन की मुखालफत करने से गुरेज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जो APC यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो भी अब हवा में तहलील हो चुकी है। हुकूमत ने पहले 2 मरतबा APC की तारीख को तब्दील किया और बाद में APC के इनेकाद को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन में मौजूद अमरीकी थिंक टैंक ने अपने तज्ज़िये में कहा है कि पाकिस्तान के पास दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए फंड्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की पोजीशन में नहीं। इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने बार बार APC मुलतवी की और बाद में APC को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दिया गया। वाज़ह रहे कि हुकूमत की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुमकिन तौर पर इस बात का फैसला करना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ माजी की तरह कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाए या ना किया जाए। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी व सियासी सूरत-ए-हाल और मुल्क में जारी दहशतगर्दी के हालात के पेश नज़र अमरीकी थिंक टैंक की तरफ से ये बात कहना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए अस्करी इदारों और हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और परेशान कुन बात है। ताहम हुकूमत की तरफ से APC को मुलतवी करने का उज़र ये पेश किया गया कि APC वाले दिन वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के ज़िलज़िला ज़दगान से इज़हार यकजहती के लिए तुर्किया जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया ना जा सके थे। ताहम आज वो तुर्किया पहुँचे हैं।
जबकि APC के इल्तवा के हवाले से दीगर ज़राए से ये खबरें मिली थीं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब की पाकिस्तान में अदम मौजूदगी के बायस APC मुलतवी की गई थी। हालात जो भी हों, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल का नतीजा ये निकला है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से अमेरिका थिंक टैंक जैसे फोरम्स APC के मुलतवी होने के हवाले से अपनी कयास आराइयाँ कर रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि जिस मुल्क के पास अपने मुल्क की सलामती के लिए चैलेंज बनने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने और ऑपरेशन करने के लिए फंड्स ना हो, तो फिर उसकी सलामती और एटमी असासों की बका के हवाले से भांग भांग की बातें तो होंगी और दुनिया को ऐसी बातें करके एक खौफनाक पैगाम तो दिया जाएगा। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता रोज़ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक वफद पाकिस्तान का दौरा करके गया है, जिसके बारे में हमने एक मुफस्सल प्रोग्राम किया था और पाकिस्तान के एटमी असासों और एटमी प्रोग्राम को लाहक ख़तरात पर तफसीली बातचीत की थी। जी नाज़रीन, इस हकीकत में कोई दो राय नहीं कि दहशतगर्दों की मौजूदगी और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए ख़तरात और वाक़यात की वजह से मुल्क में सियासी व मुआशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता, बल्कि मुल्क के हर शहरी, सियासतदानों और इदारों के सरबराहों की जानों को ख़तरात लाहक रहेंगे। लिहाजा मुल्क को अपनी तमाम तरजीहात छोड़कर दहशतगर्दों और सियासी जमातों व इदारों में मौजूद उनके सहूलतकारों के खिलाफ एक और बेरहम ऑपरेशन लाजमी तौर पर करना ही पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के एटमी असासों समेत पाकिस्तान की सलामती और बका पर एक बड़ा सवालिया निशान बाकी रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।